Adnan Sami is a living legend in the league of all-time greats, Prince and Paul McCartney, because he is a multi-instrumentalist. And today we celebrate a voice that has transcended borders and redefined musical brilliance with his versatility. Adnan stands for being a limitless Indian. He's chosen his Indian roots as his uncompromising, proud identity. He's been awarded with the Padma Shri and now serves on the Padma Awards Committee, identifying India's remarkable achievers. A limitless Indian shaped by music and a melody that never fades. Ladies and gentlemen, we present Adnan Sami. रिपब्लिक प्लेनरी समिट में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुर और सूफी संगीत की खास आवाज अदनान सामी साहब का। और इस मंच पर उनके साथ होंगी एंकर और सीनियर एडिटर सुचारिता कुकरेती। The maestro himself, Adnan Sami. Ladies and gentlemen, I think we can do with a better round of applause and a musical round of applause because Adnan doesn't like anything which is remotely not musical. So musical round of applause for Adnan Sami. And Adnan, as I start, the theme for today's summit is Limitless India. India that is roaring, India that is surging ahead, India that is confident to move ahead. And अगर आप लोग अदनान समी के गानों को जानते हैं, मैं ये जानती हूँ, तो उनका जो गाना है एक जो लिमिटलेस इंडिया को एक तरह से डिफाइन करता है अदनान. Before you take your seat, I just want to tell people because they know this song, they've been singing it all these years. और जो भारत का हर व्यक्ति कहता है और उस सपना को आज पूरा भी कर रहा है. कौन सा गाना है वो? बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे. तो आई थिंक भारत का लिफ्ट मोमेंट कब का आ चुका है. And I think if you agree, then a round of applause for that. So why don't we start with that? I think. Okay. And everyone needs to do the step that Adnan does it so well. नमस्कार नमस्कार. तेरी ऊंची शान मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे. Lift kara de. There's a reason that I chose this song, Adnan. And as I said, it truly embodies the spirit of Limitless India. We don't want to look back, we want to surge ahead, we want to look forward. And this song embodies that. और मैं अदनान से कहूँ कि वो बैठे उससे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ और हमारे दर्शक ये जानते हैं अदनान कि you also in a way embody that limitless spirit. He's a singer, he's a musician, and he plays 20 odd instruments. Who does that? He wants to move forward, and it's in the field of please. And of course, not to speak of the fact that once upon a time I was limitless. Okay. Now I came back into a little bit of a budget. And that is also a journey that I think a lot of people take inspiration from. वो भी एक ऐसा सफर है जिसको लेकर लोग बहुत प्रेरणा लेते हैं आपसे, बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं. और जैसा मैंने कहा कि अदनान पियानो बजाते हैं और इतना तेज बजाते हैं that he's also recognized as one of the fastest pianists in the world. और मैंने ये भी सुना अदनान कि आपके हाथों की तो इंश्योरेंस भी कर दी थी. Moving fastest fingers. हाँ. एक जमाने में, yes, that's true.
So Adnan, how do you see this? This is a beautiful crowd here, waiting to listen to you, waiting to listen to your story, and waiting to listen to your idea of limitless India. देखिए बात ये है कि मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि मैं पूरी दुनिया में रहा हूँ. Not as a tourist, but I've lived in different parts of the world. And you know, जब वक्त आया ये डिसाइड करने का कि कहाँ पर अपना बसेरा होना चाहिए, तो जिस तरह का प्यार मुझे यहाँ पे मिला और जिस तरह की खूबसूरती मुझे यहाँ पे दिखी और डाइवर्सिटी यहाँ पे मुझे दिखी, तो I had all kinds of opportunities. I have family in the US, Canada. My wife is from Germany. But for me, there was absolutely no doubt कि मुझे जिस तरह का यहाँ पे प्यार मिला और अपनापन महसूस हुआ, तो it had to be India. It had to be India. So अदनान ने जब भारत की नागरिकता ली तो उस समय बहुत सारे सवाल उठे थे. बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अदनान ने भारत को क्यों चुना है, जिसकी बात आपने अभी करी, क्योंकि इतने सारे देश हैं दुनिया में, लेकिन Actually, आपने कहा आपको भारत आना है. भारत ने मुझे चुना. ब्यूटीफुल. और भारत ने अपने इस तरह से हाथ और अपने इस तरह से बाहर रखे और मुझे इस तरह से गोद ले लिया, गले लगा लिया, गोद ले लिया. और ऊपर वाले से भी एक तरह का मुझे हिंट मिल गया, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा कि इसकी बर्थडे जो है ये 15 अगस्त कर दो, ताकि उसको कोई शक ना हो कि he belongs here. Now, a lot of people My who don't birthday know is this. 15th A of lot of August. people who don't know this, please tell them. Adnan is born on the 15th of August. अब आप सोच लीजिए, वो रिश्ता आप जोड़ लीजिए. बिल्कुल. तो आप ये कह रहे हैं कि रिश्ता ऊपर वाले ने जोड़ दिया. रिश्ते तो बनते ही ऊपर हैं और हम तो यहाँ पे निभाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, destiny is written from up above. We just are there to execute them. And I have no doubt in my mind that my destiny was written here. And that's where, चाहे मैं अलग-अलग दुनिया के कोनों में मैं फिरा हूँ, लेकिन ultimately जहाँ पर मुझे आना था, वहाँ पे मैं आ गया. और मैंने सिर्फ एक गुजारिश की थी सबसे कि कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ. नहीं, ऐसे हम भी हैं. और उन्होंने फिर मुझे जवाब में कहा कि भाई हम भी हैं तुम्हारे दीवाने. तो मैंने कहा मैं भी हूँ. ब्यूटीफुल. लेकिन इसे आपकी आवाज में अगर सुने, सिर्फ शब्दों में नहीं. कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ. जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ. भारत, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने. हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने. ब्यूटीफुल. बहुत ही सुंदर. Adnan, there's an iconic India-Pakistan rivalry. I today don't want to talk about it, but we have a living legend here, Mr. Anil Kumble, sitting there. He's right there, and he's lived that rivalry on the field of sports. We have Major General G.D. Bakshi sitting here. Yes, of course. We've seen him. We've seen the kind of he's a legend in his own right. Of course. But when we think about Adnan Sami, we know that you're also very good at troll bashing. And we've seen that on social media. A lot of people get, attack you, but you give it back. And how do you see this? Because was there a lot of hatred that came your way when you took up? Initially, yes. There was quite a hostile kind of a reaction, and I guess these things happen. I'm not one person who
sort of takes things lying down. I do take it, I'm very patient, I'm very tolerant up to a point. But when the other person, regardless of who that person may be, starts getting the impression that maybe he's quiet because, he's either he doesn't have something to say or he's being defensive, then you need to sort of show them the door. And boy, do I show them the door. अदनान की हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं. मैंने आपकी कई बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जिसमें देखी हैं जिसमें आप तिरंगा लिए खड़े हुए हैं, आपके पीछे तिरंगा चल रहा है. अगर हम कुछ तस्वीरें वहाँ चला भी सकें, और जब वो तस्वीरें चलती हैं तो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि जब हम भारत की बात करते हैं, लिमिटलेस इंडिया की बात करते हैं, उस भावना को, क्योंकि जब वो तस्वीर मैं आपकी देखती हूँ, उस भावना को आप एक गाने के रूप में या संगीत के रूप में कैसे पिरोत पाते हैं? क्योंकि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भाव आप अपने लोगों के सामने रख सकते हैं वो संगीत के ज़रिए. देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब कोई इंसान पैदा होता है किसी चीज़ के साथ, तो एक तरह से उसको वो चीज़ जो है वो विरासत में मिलती है. तो कभी कभी क्या होता है कि उसको खुद एहसास नहीं होता कि उसके पास कितनी कीमती और कितनी खूबसूरत चीज़ है. तो लिहाजा कभी कभी they sort of don't value it and they sometimes take it for granted, मेरा जो मैंने जो कदम उठाया वो एक तो पूरी मतलब कि मैं 40 साल की उम्र से ज़्यादा के बाद मैंने ये कदम उठाया. And it was a very, very informed decision because I had lived in different parts of the world. I had seen what the other part of the world has to offer. I was in boarding school in England, so I've seen all of that. So वो जो कहते हैं ना कि जो चीज़ें दूर से बड़ी खूबसूरत लगती हैं, मैंने करीब से भी देखी हैं. और so when I decided to take this step, it was after all the experiences that I had had, and then seeing what I had experienced over here. And so therefore, I was prepared to do anything to acquire it. कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं एक दिन उठे और अचानक बन गए. ऐसा नहीं था. 18 साल लगे और 2 रिजेक्शंस भी हुई थी. देखिए, जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि ये यहाँ जन्मे हैं, भारत में जन्मे, लेकिन एक व्यक्ति ने अगर ये सोचा कि मुझे यहाँ आना है, यहाँ रहना है, इस देश को अपनाना है, आपने कहा मुझे खुद चुना, तो वो इतने सालों तक आपने कहा कि मैंने सोचा, और वो क्या चीज़ थी, क्या जहन में आया कि आपने ये कहा कि यहीं मुझे बसना है? ज़िंदगी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, वो एक्चुअली बड़ी सिंपल होती हैं. और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इमोशनल हूँ, पठान हूँ, तो हम जो है ना वो एक सिंपल सी चीज़ से घायल हो जाते हैं, और वो है प्यार. जब कोई प्यार हमको देता है तो हम उसको अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं. तो मुझे जिस तरह का प्यार यहाँ पे मिला, जिस तरह का प्यार और आज भी मिल रहा है, तो वो मेरे लिए इतना कीमती था और है कि मैं, जैसे मैंने कहा, 18 साल लगे, और इन 18 सालों में 2 दफ़ा रिजेक्ट भी हुआ, क्योंकि कुछ होता है ना कि आपने फलानी जगह पे you did not cross the T, or it was all those technical issues, nothing serious, but I didn't give up. I kept the struggle on. That is limitless India, by the way. That is limitless. You have to be stubborn, you have to be determined, and in the good old language, you have to be dheet. And that's what I am. And you see, the most important thing is that, you see, ये जो कदम मैंने उठाया, this is not just a step that I've taken for myself, but it's for the forthcoming generations of my family. And so my daughter is here, Medina is here, and I keep telling her
the value of what it is to be a patriot. And that is something that I want her to know, that, you know, and I know the generations to come, that, you know, it did not come easy. So don't ever take it for granted. I had to really, really struggle for it. And I'm so happy that I did. And I'm just overwhelmed by the love that I have over here. So, you know, not every bit of it was worth it. So beautiful. और जैसा अदनान कह रहे हैं कि देश प्रेम को लेकर तो हम सब ढीठ हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं. मैं सही कह रही हूँ ना? देश प्रेम को लेकर ढीठ होना पड़ता है, और हम सब जो एक भावना महसूस करते हैं, वो आई थिंक इट दैट थ्रेड रन्स थ्रू द ऑडिटोरियम टुडे. आई थिंक वी ऑल ऑफ अस फील द सेम. बट अगर हम ढीठ ना होते ना, तो अंग्रेज कभी ना जाते. ब्यूटीफुल. अदनान, आप मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर बहुत से लोग, जब मैं आ रही थी तो मुझसे कहा गया कि अदनान समी आ रहे हैं, क्या आप उनसे ये वाला गाना गवा सकते हैं, क्या आप उनसे ये रिक्वेस्ट पूरी करवा सकते हैं. तो मुझे लगा कि मुझे एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ गई अपने फ़ोन पर. पर मैं आपसे बोलूँगी कि हमारी ऑडियंसेस के लिए, क्योंकि आज ये लिमिटलेस इंडिया की थीम है, अगर कोई ऐसा आप तराना हमारे दर्शकों के लिए दे पाएँ जो शायद एक भावना को रख सकता है जो हमारे देश के प्रति है, या फिर जो आप सोचते हैं कि एक सोच आपकी है देश के प्रति. देखिए, बात ये कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस देश में इतनी अलग अलग किस्म की डाइवर्सिटी है, और ये अलग अलग चेहरे जो हैं, ये सब इकट्ठे होके एक बहुत खूबसूरत चेहरा बनाते हैं. तो अगर मैं उसको संगीत के ज़रिए बयान करूं, तो एक ही गाना मेरे दिमाग में आता है इस वक्त, तो वो है ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए. जब तालियां बजती हैं तो मेरा रोल खत्म हो जाता है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. ये सीधा जुड़ाव आपका और ऑडियंस के बीच का है, और ये संगीत लाता है. मैं बस आपसे ये ज़रूर पूछूंगी अदनान, क्योंकि आज प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं, हमारे सारे दर्शक उनका इंतज़ार कर रहे हैं. प्रधानमंत्री इस लिमिटलेस इंडिया, क्योंकि आपकी कई बार उनसे मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री इस लिमिटलेस इंडिया और एक ऐसे भारत जो कि सपने देख रहा है और उन सपनों को पूरा कर रहा है, आप कैसे जुड़ते हैं इस पूरे सफ़र में उनके साथ? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे जो उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बेहद पसंद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो उनका जोश है. क्योंकि उनका जो एक इंथुजियाज़म है अच्छाई करने का, वो एक मिसाल है सबके लिए. और वो जिस तरीके से उनको जो कुछ ऊपर वाले ने अता किया है, उसके बावजूद वो कभी आराम से बैठते नहीं हैं. वो कभी भी ये नहीं सोचते कि अच्छा भाई मैंने जो करना था मैंने कर दिया, संभालो. नो, वो अपने पास्ट लॉरल्स को गिनते ही नहीं है. वो बस ये देखते हैं कि आगे क्या देखना है, आगे क्या करना है, आगे क्या अचीव करना है, क्योंकि बहुत कुछ है अचीव करने के लिए. तो ये जो एटीट्यूड है, ये हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है. और आज जो उन्होंने अपना एक मकाम पूरी दुनिया में बनाया है, वो सब
देखते हैं, और उसके ज़रिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत का जो एक इमेज उन्होंने पूरी दुनिया में एक तरह का रीबूट किया है, वो इतना खूबसूरत है कि आज आप जिधर भी जाते हैं तो लोगों का जो एक एटीट्यूड है आपकी तरफ, जिस नज़रिए से वो देखते हैं, वो बदल गया है फॉर द गुड. एंड सो द पॉइंट इज, आई थिंक द greatest lesson that I see from him is, do not sit and pat yourself on the back. Keep marching forward and don't rest on any laurels. Keep going forward and trying to go for yet another achievement. मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अदनान से जब मेरी कल बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरती के साथ कही कि कैसे जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, हिंदुस्तानी जो हमारा संगीत है, उसको कैसे आगे लेकर बढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है. और अदनान ने ऐसा किया भी है. उनके कई ऐसे गाने हैं जिसमें हिंदुस्तानी राग को उन्होंने पॉप में बदल दिया है और वो बहुत आप लोगों के बीच बहुत हिट हुआ है. तो मैं चाहूँगी अदनान, जिससे पहले हम इस सेशन को अंत करें क्योंकि हमारे और भी कई मेहमान आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने का समय हो रहा है, आपका कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है भारतीय संगीत को भी परिभाषित करता है और उसको विश्व मंच पर भी रखता है? देखिए, मेरी जो बुनियाद है मेरे संगीत की, वो चाहे मैं बाहर बड़ा हुआ जैज़ के साथ शुरू किया, मैंने वेस्टर्न क्लासिकल के साथ शुरू किया, लेकिन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में मेरी एक बुनियाद है, और ख़ास तौर पे पियानो बजाने में. तो मेरी हर कॉम्पोजिशन जो है उसके अंदर हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई ना कोई राग लूँ, उसकी एक बुनियाद रखूँ, और फिर उसके ऊपर मैं अपना एक रंग दूँ और उसमें फ्यूजन भी लेके आऊँ. तो उसमें लाइक फॉर एग्जांपल राग दरबारी है. अब राग दरबारी के जो सुर हैं वो ला रा डा डा ला रा डा 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 ला रा डा 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 डा. अब ये राग दरबारी है. अब मैंने उसके ऊपर पकड़ के मैंने क्या बनाया, नैन से नैनों को मिला, नैन से नैनों को मिला, काहे को सताए हैं अभिजात नैन. और फिर सुन जरा सोनिए सुन जरा, आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने हैं दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है, सुन जरा सोनिए सुन जरा. बहुत बहुत खूबसूरत. और अदनान, आई थिंक आप जिस तरह से भारतीयता को परिभाषित करते हैं उससे कोई भी इंस्पायर होगा, उससे कोई भी उस सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक भाषा है जो आप संगीत में ढाल देते हैं. तो मुझे लगता है थैंक यू सो मच अदनान फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन. एज आई सेड, a musical round of applause for Adnan Sami for being on the Republic Plenary Summit. That says it all, Adnan. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Adnan and Sucharita.